Good morning, students. Yeah, all of you, good morning and welcome back to class 12 physics. And we are going ahead with the topic of atoms, in which in the last class we've done the Bohr's atomic model or Bohr's planetary model, जो हमने last class में किया था, ठीक है? और last class में हमने radius का expression तक निकाल लिया था. So we'll go ahead with the same procedure and we'll again find out the expression for radius और उसके आगे आज हम बढ़ेंगे. तो बोर्ड्स के पोस्टुलेट्स याद रखना. सेंटर जो रदरफोर्ड ने निकाला था, that there is nucleus. Rutherford told that nucleus, around the nucleus electron can revolve in any orbital. किसी भी रेडियस के ऑर्बिटल में वो रिवॉल्व कर सकता है. बट बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कन्फाइंड है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी रेडियस, किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता है. इट has to be a stationary orbit, and for being a stationary orbit, its angular momentum in VR should be an integral multiple of h by 2 pi. ठीक है, तो फिर से रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि आज इसी के आगे बढ़ेंगे. We'll talk about energies associated with it, we'll talk about velocity, and we'll talk about certain short values that will come out today. ठीक है, okay. So here we had the nucleus, which was at the center, and an electron which was revolving around the nucleus in a particular orbit. ठीक है, अब ये हमने रेडियस ले ली थी r. Fine. So the very first thing, as it is moving in a circular orbit, that means it would be having a force that would be a centripetal force, that is mv square by r, and this centripetal force would be provided by the electrostatic force between the two, that is given as k q1 q2 by r square. Fine. So from here I get an expression for r which is k ze square by mv square. Quite clear? ठीक है, एक एक्सप्रेशन हमको यहां से मिल रही है. Now the next part, as per Bohr's quantization condition, the angular momentum mvr should be equals to or should be the integral multiple of h by 2 pi, that is nh by 2 pi. So from here I get r as nh upon 2 pi mv, equation number 2. ठीक है, बराबर. So from here if I equate both r, I can eliminate v. So I'll get k z square equating 1 and 2. बेटा बहुत जरूरी है कि हम लोग यहीं से स्टार्ट करें, वरना पूछ पकड़ने में और सर पकड़ने में दिक्कत हो जाएगी. So I'll have k z square by mv square is equals to nh by 2 pi mv, nh by 2 pi mv. बराबर. So from here I take out the expression for v. m कट गया, तो I'll have v is equals to 2 pi k z square by nh. This is equation 3. So now I got the expression for velocity, which I can replace in either equation 1 or I can replace in equation 2, and I'll get the expression for the r, the radius of the nth orbit. I'll get the radius of the nth orbit. So चलो इस equation 3 को equation 2 में put कर देते हैं. So therefore r is equals to nh by 2 pi m into v, और v है हमारा 2 pi k z square by nh. From here I get the expression for r as n square h square by 4 pi square mk ze square. This is the expression for the radius of the nth orbit of revolving electron. अब साथ ही साथ एक चीज और देखो, यहाँ पे कितनी कांस्टेंट वैल्यूज है उनको एक तरफ कर लो. सो आई कैन से r, और सिंपलीफाई हो सकता है, ये भी और सिंपलीफाई हो सकता है. जैसे k की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 1/4 pi एप्सिलॉन. r is equals to n square h square upon 4 pi square into m into k, which is 1/4 pi epsilon naught
into z e स्क्वायर। तो यहां से देखो 4 4 कट गया, ठीक है, एक पाई कट गया, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद n स्क्वायर x स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय m पाई n z e स्क्वायर, पाई m z e स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मैं एक एक्सप्रेशन लिख लेता हूं जो हमारी निकल के आई है, दैट इज रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एज n स्क्वायर x स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n square x square epsilon naught whole divided by pi m z e square, pi m z e square. Is it clear up till here? यहां तक का पार्ट तो हम कल कर ही चुके थे. Is this point clear up till here? And is the board visible to you clearly? ये board clearly visible है आपको? Yes, please. Or should I bring it more closer? Okay, I think now it is clear. Okay, ठीक है. Okay, ठीक है. चलो. So this is the expression for the radius of the revolving electron in the nth orbit. ठीक है. चलो भाई, अब हम आगे बढ़ते. अब इसी को और सिंप्लीफाइड तरीके से भी हमें करना है. Okay. So now the radius which I got for the nth orbit, this can further be written as, जो हमें मिला है n square h square epsilon naught whole divided by pi m z e square. बेटा इसी में से कांस्टेंट टर्म्स जो है उनको एक साइड कर लो, क्या हो जाएंगे, h square epsilon naught divided by pi m e square, pi m e square, this whole multiplied by n square by z. ठीक है, चेक करो, this whole multiplied by n square by z. ठीक है, ठीक. Now this constant term has a value of 0.53. इसमें अगर h एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.53 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम्स. ये याद, यूनिट इसकी मीटर्स नहीं है, सेंटीमीटर्स नहीं है, इट इज एंगस्ट्रॉम्स. Is this part very much clear? So in simple for any of the hydrogen like atoms or single electron वाले जितने भी atoms होंगे, for example He++, Li+++, ये जितने भी इस टाइप के atoms होंगे, in that you can directly use this expression because remember Bohr's quantization condition or atomic model is confined to single electron like atoms. ठीक है, तो यहां पे ये शॉर्ट एक्सप्रेशन लिख देता हूं, that radius of nth orbit can directly also be calculated as 0.53 into n square by z angstroms. Is it clear? Clear है यहां पे? Yes please. Is it okay? चलो ठीक है. तो यहां पे अगर तुमको कोई भी पूछता है, मान लो हाइड्रोजन के लिए पूछता है nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, तो z हमें मालूम है हाइड्रोजन के लिए 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट पूछ रहा है तो n की जगह 1 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम्स. दिस विल बी द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट का. सेकंड का पूछेगा तो z की जगह 1, n की जगह 2, 2 to the 4, and you multiply and you see that as you go on increasing the value of nth orbit, the radius goes on increasing. और ये हमको मालूम है कि जैसे जैसे रेडियस दूर होता जाएगा, nth ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ती चली जाएगी. ओके, चलो भाई अब आगे बढ़ो. नाउ टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, इन द nth ऑर्बिट. और फिर से हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स की, और वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स, केवल उनकी बात कर रहे हैं.
So as per Bohr's quantization condition, as per Bohr's quantization condition, we very well know that mvr is nothing but nh by 2 pi. ठीक है, तो यहां से देखो आई कैन से v is equals to nh upon 2 pi mr. mr तो इधर ले, ठीक है, रेडियस का एक्सप्रेशन ऑलरेडी है हमारे पास, तो पुट कर लो उसकी वैल्यू, ये हो जाएगा mh अपॉन 2 pi m into r, और r कितना है nth ऑर्बिट का, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय ऊपर चलाएगा पाई m z e स्क्वायर, पाई m z e स्क्वायर। यहां से देख लो तो एक n उड़ गया, एक h उड़ गया, ठीक है, एक पाई भी उड़ गया। Yes, so what I get velocity of the nth orbit or velocity of electron in the nth orbit as mv उड़ गया, z e square by 2nh epsilon, z e square upon 2nh epsilon naught. Please check it, please check this one. क्लियर है, क्लियर है, चेक कर लिया। ओके, अब देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट would be given as z e square upon 2n z e square upon 2nh epsilon naught, 2nh epsilon naught meters per second. Now again, अब इसमें से कांस्टेंट टर्म्स अलग कर लो, तो कांस्टेंट टर्म्स क्या होंगे, e स्क्वायर बाय 2h एप्सिलॉन नॉट, 2h एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय z बाय n, मल्टीप्लाइड बाय z बाय n। अब बेटा अगेन ये फिर से कांस्टेंट टर्म आ गया जिसमें हमें सबकी वैल्यूज मालूम है, जिसमें हमें सबकी वैल्यूज मालूम है, e की मालूम है, h की मालूम है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज मालूम है। So in short, if you plug in the value, you will get velocity of electron in the nth orbit as 2.18 into 10 की power 6 into 10 की power 6 multiplied by z upon n meters per second. This will be the velocity of electron in the nth orbit. Again, I repeat, for applicable only for, valid only for hydrogen like single electron atoms. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन फिर से मैं यहां लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म इसका, दैट v is equals to 2.18 into 10 की पावर 6 into z by n into z by n meters per second. This is meters per second. Clear है ये पॉइंट? Yes please. क्लियर है ये पॉइंट? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है। और ये प्रॉब्लम ऐसे ही कि इसमें डायरेक्ट तुम्हें वैल्यू प्लग इन करके तुम्हें सीधे सीधे एक्सप्रेशंस निकालना, खेल इसके आगे चलेगा। खेल थोड़ा सा जो टेढ़ा वाला है, टेढ़ा नहीं है, पर आई मीन टू से खेल में थोड़ा सा इसके ऊपर है, वो अब चलेगा। ओके चलो, सो लेट्स गो अहेड विद अनदर पार्ट। ठीक है, तो बात होगी कि भैया रिवॉल्व कर रहा है, तो किसी रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है, उसके पास एक वेलोसिटी है। ठीक है यार, इतनी सब बातें हैं, तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी भी है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी भी है। तो चलो देखते हैं एनर्जी के बारे में। इफ यू हैव एन इलेक्ट्रॉन अगेन which is revolving around this nucleus in an orbit, इधर रिवॉल्व करता जा रहा है रेडियस r पे। ठीक, तो इट मस्ट बिकॉज इट इज रिवॉल्विंग, वेलोसिटी है उसके पास, सो इट मस्ट हैव काइनेटिक एनर्जी, इट मस्ट हैव काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज हाफ m v स्क्वायर बराबर
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. वी आर टॉकिंग अबाउट K ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो जब Ke की बात करोगे तो हमको मालूम है Ke is given as half mv². ठीक है, किसी nth ऑर्बिट में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m कांस्टेंट है v. v डिपेंड करेगा उसके nth ऑर्बिट में कि उस nth ऑर्बिट में उसकी कितनी वेलोसिटी है, उसी के हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. और nth ऑर्बिट की वेलोसिटी हमको मालूम है, तो प्लेस कर देते हैं. तो ये कितनी मिलेगी? हाफ m into v का स्क्वायर. तो v कितना है बेटा? z² होल अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर बराबर v² है ना, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा. तो ये क्या मिलेगा? दिस आई गेट अस हाफ m into, ये हो जाएगा z² e की पावर 4 अपॉन 4n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर. ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा हमको? ये मिल जाएगा m z² e की पावर 4 होल अपॉन 8n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर. ठीक है, दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर K m z² e की पावर 4 अपॉन 8n² h² एप्सिलॉन. अब अगेन what I do over here is if I take out the constant terms, अगर गौर से देखो तो अगर इसके constant terms फिर से निकाल दो तो क्या क्या constant terms है? m e की पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 8 h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर. दिस होल मल्टीप्लाइड बाय क्या क्या बचा? z² और n² मल्टीप्लाइड बाय z² अपॉन n². देख लो यहां पे क्लियर है? प्लीज चेक द कैलकुलेशंस. चेक द कैलकुलेशंस. ठीक है, and when you again plug in the values of these constant terms, mass, e की पावर e, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, h, एप्सिलॉन नॉट, इन सब की वैल्यूज प्लग इन करके अगर तुम फिर से कैलकुलेट करोगे तो यहां पर तुमको एक और शॉर्ट एक्सप्रेशन मिलता है फॉर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 13.6. इसकी पूरे की वैल्यू आती है 13.6 into z² by n² into z² by n². ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस यू गेट इट एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अच्छा अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए बेटा z क्या हो जाएगा? 1. z क्या हो जाएगा? 1. तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी Ke कितनी आएगी? Ke फॉर हाइड्रोजन एटम 13.6, z हो गया 1 तो हमेशा 1 रहेगा, will be 13.6 divided by n². will be 13.6 divided by n². Is it clear? और काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या है वो भी लिख लेते हैं यहां पे, which is mz² e की पावर 4 mz² e की पावर 4 whole divided by 8n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर. 8n² h² एप्सिलॉन नॉट का. क्लियर है भाई यहां तक? यस प्लीज. Is it clear up till this point or do you have a doubt over here? यहां तक क्लियर है? ओके. अच्छा, अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहा है, ध्यान से देखो भैया, अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, तो रिवॉल्व करते टाइम ये किसकी वजह से रिवॉल्व कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी है इसको मिल रही है, बट यहां पे दो चार्जेस भी हैं. एक न्यूक्लियस का चार्ज, that is the charge of the protons, and the charge of an electron. दो चीजें. तो जब दो चार्जेस होंगे जिनके इन्फ्लुएंस में उसका मूवमेंट हो रहा है, if the two charges are present, that means there must be a presence of electrostatic potential energy. There also should be a presence of electrostatic potential energy. ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं. वो भी होगी भाई, क्योंकि मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है उसके पास,
बट दो चार्जेस हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो दो चार्जेस जब कभी होंगे तो देयर मस्ट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. So let's talk about the electrostatic potential energy also. Electrostatic potential energy, इसकी भी तो बात करनी पड़ेगी ना भाई, इसको तो खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसी की वजह से तो फैला हो रहा है सारा का सारा, दो चार्जेस उन्हीं की वजह से हो रहा है. एंड वी नो पोटेंशियल एनर्जी, electrostatic potential energy is given as K Q1 Q2 by R. यही होती है ना एक्सप्रेशन, K Q1 Q2 by R. तो वैल्यूज पुट करो. K Q1 कितना है, न्यूक्लियस ले लो Ze. Q2 कितना है, माइनस E. याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब कभी इनके एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैट्स तुमको याद होगा, हम चार्ज का सिंबल यूज करते हैं, चार्ज का सिंबल यूज करते हैं अपॉन R. फाइन, चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा भाई, K तो ये हो जाएगा माइनस Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. अच्छा, R की वैल्यू हमको मालूम है, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट कर दो. तो ये कितना हो जाएगा, माइनस Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, which is n square h square epsilon naught whole upon pi m Ze square. ठीक है, चलो इसको देखो आगे. तो P will be माइनस, ठीक है, अब जो कट रहा है काट लेते हैं, पाई पाई कट गया, ठीक है, और कुछ कट रहा है, और तो कुछ कटता नहीं दिख रहा है. तो चलो ये हो जाएगा माइनस m z स्क्वायर e की पावर 4, m z स्क्वायर e की पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर. ठीक है, इज इट वेरी मच क्लियर? यस, मिल गया भैया. This is the expression for potential energy. क्या है potential energy की expression? Electrostatic potential energy minus m z square e की power 4 whole upon 4 times n square h square epsilon naught का square. Yes? Is this part very much clear? And if you compare kinetic energy and potential energy, if you compare kinetic energy and potential energy, तो तुमको यहाँ पे कुछ दिखेगा. If you compare kinetic energy and potential energy, क्या दिख रहा है, गौर से देखो. Potential energy is double of kinetic energy, दिख रहा है. Potential energy is double of kinetic energy. देखो ये 1/8 है, ये 1/4 है, तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और 1/4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, Pe हो जाएगा. दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो यही एक्सप्रेशन Pe के लिए अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो क्या मिलेगी, माइनस 2 into 13.6 into divided by n square, divided by n square. हाइड्रोजन के लिए. दूसरा होगा तो तुम Z की वैल्यू प्लेस कर दोगे, दूसरा होगा तो Z की वैल्यू प्लेस कर दोगे. So is this part very much clear to all of you? यहां तक ये बात क्लियर है? तो मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पे. This will be equal to minus 13.6 into 2, ठीक है, और आ जाएगा z square by n square into z square by n square. Yes? Clear here? Is this part of potential energy very much clear to all of you? हाँ भाई, is it clear? Quick, hurry up. Is this part very much clear to all of you? बेटा जल्दी रिस्पॉन्ड करो so that we can move ahead and do a bit of questions also. Clear है?
चलो ठीक। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट, तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई, हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, ठीक है। एंड इफ नाउ यू टॉक अबाउट द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यू टॉक अबाउट द टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी what will be total energy? Total energy will be nothing but the sum of kinetic energy plus potential energy. क्या होगा? Total energy will be the sum of kinetic energy and the electrostatic potential energy. तो total energy U, kinetic energy कितनी थी अपनी? m z square e की पावर 4 होल अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो प्लस पोटेंशियल नेगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस m z स्क्वायर e की पावर 4 होल अपॉन 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, बराबर। अब इसमें से एक काम करते हैं, क्या करते हैं हम, इसमें से ये जितने कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर ले लेते हैं। दैट मींस m z स्क्वायर e की पावर 4 होल अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और अंदर हमको मिलेगा 1/8 माइनस 1/4, 1/8 माइनस 1/4, 1/8 माइनस 1/4 को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4/32, माइनस 1/8 आई थिंक मिलेगा यहाँ पे। Yes, what will be I'll be getting I think minus 1/8 minus 1/4, हाँ भाई कितना आ जाएगा? एलसीएम आ गया 32, हो गया 4 माइनस 8 32, तो ये हो जाएगा माइनस 4/32, ये हो गया माइनस 1/8, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा अपने को? माइनस 1/8। So I can express it over here, this would be equals to minus m z square e की पावर 4 होल अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है? Is this part very much clear to all of you? ठीक है, तो अब इसमें एक लास्ट पॉइंट देखें कि जो टोटल एनर्जी तुम्हारी आ रही है, द टोटल एनर्जी दैट यू आर गेटिंग, ठीक है, इसको और सिंपलीफाई कर लो तो सॉल्व करके तो माइनस m e की पावर 4 होल अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? इसकी वैल्यू आ रही थी हमारी 13.6, दैट मींस टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज माइनस 13.6 into z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो ये z की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये z की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 1 हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या बचेगा? माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर, ठीक। अब इसको एनालाइज करते हैं, अब इसी पार्ट को हम एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज करेंगे देखो ध्यान से। सो लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा है, ये इस टाइप से रिवॉल्व करता जा रहा है, करता जा रहा है। So now if you see the energy of the electron in the nth orbit, the total energy of the electron in the nth orbit we got as minus 13.6 by n square। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो Z1 हो गया। अब जब तुम यहां पे 1 पुट करोगे, एनर्जी ऑफ इन द फर्स्ट ऑर्बिट में कितना आ जाएगा? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट तो माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4, तो ये आ जाएगा 4 3s are 12 or 16 minus 3.4 electron volt. Energy of electron in the third orbit, so minus 13.6 divided by 3, 3 3s are 9, तो ये कितना आ जाएगा? minus 1.51 electron volt, which shows कि जैसे जैसे यहां से nth orbit बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे if you see the nth orbit is going on increasing,
What can you say? The energy of electron is increasing or decreasing? Quick. जब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इस शेल से इस शेल में है, इस शेल में है, इस शेल में, तो मान लीजिए n इक्वल टू 1 है, 1, ये 2, ये n इक्वल टू 3, तो कौन सी शेल के इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी? वेरी गुड, एनर्जी इज इंक्रीजिंग, एनर्जी इज increasing, it is moving towards ionization, it is moving towards ionization, ये ionization की तरफ बढ़ रहा है। that means उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जैसे जैसे ऑर्बिट शिफ्ट हो रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। और ये तुम्हें देखना, पहले -13.63, देखो नेगेटिव डिक्रीज होता जा रहा है। अब ये नेगेटिव टर्म क्या है? ये नेगेटिव टर्म ये बता रहा है कि ये न्यूक्लियस इसको इतनी एनर्जी से होल्ड कर रहा था, इतनी एनर्जी से इसको होल्ड कर रहा था, बराबर। अब उसकी होल्ड करने की एनर्जी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। उसकी होल्ड करने की एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है, नेगेटिव कम होता जा रहा है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है, न्यूक्लियस की होल्ड करने की एनर्जी कम हो रही है, एंड दिस इज व्हाई वी से दैट इट इज मूविंग टुवर्ड्स आयोनाइजेशन, इट इज मूविंग टुवर्ड्स आयोनाइजेशन। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट फॉर मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? nth ऑर्बिट को मैक्सिमम ले जाना पड़ेगा, और nth मैक्सिमम कितना होगा? इंफिनिटी। फॉर मैक्सिमम एनर्जी n would go to infinity. That is energy in the nth orbit, which is -13.6 by n square. So infinity का square would result to 0. Hence, the maximum energy of the electron will be 0. Hence, the maximum energy of the electron would be 0. क्यों? जैसे ही 0 हो गई, जैसे ही एनर्जी 0 हो गई, उसके होल्ड करने की एनर्जी 0 हो गई, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, चला गया, आयोनाइज हो गया। एटम इज आयोनाइज, एटम कन्वर्ट्स टू, ये उससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। तो नेगेटिव बता रहा है होल्ड, नेगेटिव कम हो रहा है, होल्ड कम हो रहा है, होल्ड कम हो रहा है, आयोनाइजेशन बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? और मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? उस टाइम पे वो छूट गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस। Is this part and topic very much clear to all of you? Yes, please. Is this part and topic very much clear? ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, एंड टुमारो वी जंप ऑन टू द स्पेक्ट्रम। ठीक है, हम स्पेक्ट्रम के बारे में कल पढ़ेंगे। So that's all for today. Thank you very much. Enjoy your day. Have a nice day. Stay safe. Stay home. And say Bharat Mata ki Jai. Thank you.